Just let me know if my screen is visible. Yes, it is visible. Anyone Okay. confirm, please? Yes. Yes, sir, it is visible. We can see. Okay. Okay. So thank you guys for joining. My name is Yogita. So today's our topic is clinical data management, basic information. So we'll start with what is clinical data management. So we'll explain in a very basic language. So what is a clinical data management? So last time, we get many questions. So I know many of this quite familiar about what is clinical data management. So कोई बता सकता है what is clinical data management? Any idea? Hesitate, just anything about clinical data management, कुछ भी अगर पता है तो no idea. Ma'am, it's a part of clinical research and it's provide high quality and statistical data from clinical trials. Yes, right, absolutely right. Thank you. So, yes, clinical data management. So, first thing is a clinical trial. Clinical trial होता है and clinical trial के अंदर clinical data management आता है. So, first is what is the clinical trial. So, अगर मुझे कोई ड्रग है और उसका मुझे अप्रूवल चाहिए, मुझे वो ड्रग पर्टिकुलर ड्रग मुझे मार्केट में लाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड अप्रूवल. तो अप्रूवल के लिए मुझे वो पर्टिकुलर ड्रग पे क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करना पड़ेगा कि ये ड्रग ह्यूमन सेफ है, ह्यूमन के लिए वो ड्रग सेफ है. उसके लिए मुझे फर्स्ट वो क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करना पड़ेगा. सो टू कंडक्ट दिस क्लिनिकल ट्रायल वी नीड क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट. सो क्या करता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट? जो भी डेटा होता है क्लिनिकल ट्रायल में, so whatever data involved in a clinical record, we used to manage this data in a clinical data management. So clinical data management data manage करता है. So whatever data, so suppose there is a protocol, there is ECRF, so all this data managed by clinical data management. So ये जो है clinical data management is very important in the clinical trial. So this is a, you can say this is the heart of the clinical trial, clinical data management. अगर data ही manage नहीं होगा तो वो trial आगे ही नहीं जाएगा. So yes, this is the clinical data management. So I just want to say, if anybody, आपको कोई भी query है, कुछ भी है, doubt है, तो please ask in between, just stop me and ask question. So ये स्लाइड पे क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट क्या है, इस पे कोई क्वेश्चन है आपको? No, ma'am. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. सो दीज आर द स्टेजेस. सो ये स्क्रीन्स वगैरह बराबर दिख रहा है ना मेरा? Yes, ma'am. Okay, thank you. So these are the stages of CDM. So CDM has different stages and different stakeholder involved. So first is a protocol design. जो protocol document है वो important document है, most important document in the clinical data management. So first we need to work on the protocol. So all these DMPs, CRF design, database design, data capture, data validation, and database log. So these are the different topics and vast topics. So we discuss these all topics in a different sessions in our upcoming session. In this session, I just give you a basic information. So basic information भी हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे. सो दिस इज अ स्कीमेटिक स्ट्रक्चर. सो इसमें है जस्ट फर्स्ट है प्रोटोकॉल डिजाइन, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में. देन डीएमपी मीन्स डेटा मैनेजमेंट प्लान. Then CRF design, database design, data capture, data validation, and database log. And these are the different stakeholders.
जो भी इन्वॉल्व होते हैं क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, और भी है वो हम अपकमिंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे. So first is the data manager, the most important in the clinical data management. So second is a database designer, जो डिजाइन करता है डेटाबेस को. देन डेटा एंट्री एसोसिएट, जो साइट पे डेटा एंट्री करता है और जो हमें विजिबल होता है डेटाबेस में. देन मेडिकल कोडर और देन क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट. उसके बाद जो ये ऑरेंज कलर में है विजिबल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड पब्लिकेशन. ये जो है वो डेटा मैनेजर का काम नहीं है, वो उस डेटा मैनेजर के बकेट में नहीं आता. ये जो है SAS प्रोग्रामिंग एंड बायोस्टैटिस्टिशियन, ये डेटाबेस लॉग के बाद SAS प्रोग्रामर और बायोस्टैटिस्टिशियन इस पे काम करते हैं, जो SAP डॉक्यूमेंट बनाते हैं और आर्काइवल आफ्टर लॉग. सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्लाइड. सो है कुछ डाउट ये स्लाइड पे? Okay, consider no. So why CDM? So I already explained why CDM. CDM important क्यों है? Because जो ड्रग का जो कंफर्मेशन और ड्रग अगर हमें मार्केट में लाना है तो उसके लिए CDM से होके ही जाना होगा हमें. So that is why CDM is the most important. So yes, these are the another key members and important key members involved into the clinical data management. So yes, data manager, database administrator, database programmer and clinical data associate, जो CRAs होते हैं. So data manager क्या करता है? जो clinical data management के 3 phases होते हैं: study startup, study conduct and study closeout. ये 3 जो मेन इसके बीच में ही पूरी स्टडी घूमती रहती है. सो उसमें जो फर्स्ट है क्लिनिकल डेटा मैनेजर, वो तीनों भी फेजेस में काम करता है. देन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या रहता है? जो स्टडी डेटाबेस रहता है उसका एक्सेस रिवोक करना और ग्रांट करना, उसके लिए भी एक्सेस लगता है. अगर हमने कंपनी ज्वाइन किया तो ऑफकोर्स हमें एक्सेस नहीं रहता है वो डेटाबेस का, वो एक्सेस और पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है. तो उसके लिए वो डेटाबेस के लिए वो टूल के लिए, फॉर एग्जांपल मैं रेव डेटाबेस पे काम कर रही हूँ तो मुझे वो डेटाबेस के लिए क्रेडेंशियल्स लगेगा. सो वो काम करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो एक्सेस रेज करता है. अगर मैं कंपनी छोड़ के जा रही हूँ तो एक्सेस रिवोक करता है. सो यस, देन डेटाबेस प्रोग्रामर. सो डेटाबेस प्रोग्रामर का जो रोल है वो डेटाबेस के स्क्रीन्स को रेडी करना, तैयार करना. देन क्लिनिकल डेटा एसोसिएट. सो क्लिनिकल डेटा एसोसिएट मीन CRA, जो साइट पे जाके डेटा एंट्री करवा लेते हैं साइट से, जो हमें विजिबल होता है बाद में डेटाबेस में. सो रोल रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क. सो दीज आर द रोल्स ऑफ द क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट. सो किसी को भी कि ये रोल में नहीं समझा, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, सो प्लीज आस्क. So no issues. Okay. So yes, these are the DM role. आगे देखते हैं उसका क्या है. So this is just a schematic representation of the clinical trial overview. So first is a planning. तो ओवरऑल हमें क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट को पहले प्रोटोकॉल रिसीव होता है. सो वंस वी रिसीव दिस प्रोटोकॉल वी नीड टू जस्ट थॉरली रिव्यू दिस प्रोटोकॉल. सो हमारे लिए अभी वो न्यू है, अभी उसमें क्या है, कौन सा ड्रग है, क्या एक्टिविटीज है, कितने पेशेंट्स इनरोल होने वाले हैं, सब हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या है, कैसे है. उसके बेसिस पे ही हम नेक्स्ट एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं. जब प्रोटोकॉल से ही हम बाकी एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि है डेटाबेस डिजाइन. अभी डेटाबेस डिजाइन करने के लिए प्रोटोकॉल लगेगा ही, क्योंकि उसमें सब एक्टिविटीज दिए रहते हैं कि कौन से कितने पेशेंट आने वाले हैं, क्या विजिट होने वाली है, कितने विजिट्स रहेगा, क्या थेरेप्यूटिक एरिया है वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का. सो वो सब इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में दी रहती है. उसके बेसिस पे ये सारी एक्टिविटीज हमें गैदर करना होता है. सब इंफॉर्मेशन गैदर करके वो फिर डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, एडिट चेक करते हैं, डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट, वो सब बाद में का है. फर्स्ट इज अ प्रोटोकॉल. सो यस, दिस इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन. ये इमेज पे अगर कुछ डाउट है मैं
2 मिनट्स का पॉज लेती हूँ, आपको देखना है देखो, और प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। तो ये सब मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने ही वाली हूँ। जस्ट दिस इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। Okay. So these are the responsibilities of CDMs. तो अब CDM के बारे में आपको कुछ तो पता चल गया अभी। तो कितने फेजेस रहते हैं CDM में आपको पता है? Can anyone try? 4 stages. Which one? Phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. This is a clinical trial के phases. So we need a CDM, clinical data management में 3 phases रहते हैं. So Study वो started and conducted. That's you and discussed. last one is Study closeout. yes, right, absolutely. Thank you so much. So these are the 3 phases in the comes into the CDM, and most important इसी पे पूरी स्टडी चलती है, मैंने बहुत बताया ऑलरेडी। सो सेटअप में जो एक्टिविटीज है वो है CRF डिजाइन है, डेटाबेस टेस्टिंग, बिल्ड एंड टेस्टिंग है, एडिट चेक प्रिपरेशन। सो दीज आर द एक्टिविटीज। देन स्टडी कंडक्ट इज अ लॉन्गेस्ट फेज, बहुत लंबा चलता है। सेटअप तो हो जाता है, फिर कंडक्ट में ऑल द क्लीनिंग एक्टिविटीज चलती है, सब क्लीनिंग एंड ऑल, सब वेंडर का डिस्कशन एंड वो सब स्टडी कंडक्ट में होता है। सो दीज आर द लॉन्गेस्ट फेज इनटू द CDM. So these are all the activities covered into the study conduct, and the last is the study closeout, जिसमें हम study close कर देते हैं, and after the study closeout there is archival activities and yes, archival activities. Okay, so any doubt? Students, if you have any query, kindly ask. Be interactive. Okay, then study startup. So this is a first phase, study startup. So we receive protocol first. So medical monitor share study protocol. So what is a study protocol? Protocol में क्या रहता है? All the study related information रहती है. So once we receive protocol, क्या first thing data manager क्या करता है? First thing is review the protocol. So we need to review thoroughly protocol. What parts in the what all parts involved into the protocol is, first thing is the study title. प्रोटोकॉल में स्टडी टाइटल रहता है। स्टडी टाइटल से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी फेज की स्टडी है। अभी अर्लियर इसने बोला कि स्टडी के मतलब क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेजेस रहते हैं। तो सो यस, तो स्टडी का जो फेज है वो हमें टाइटल से पता चल जाता है कि ये फेज 1 स्टडी है, फेज 2 स्टडी है, 3 और 4। उसके बाद स्टडी टाइटल से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा थेरेप्यूटिक एरिया है। डायबिटिक स्टडी है, रेस्पिरेटरी स्टडी है, अस्थमा रिलेटेड है, और कैंसर ऑन्को की स्टडी है। सो उसमें हमें ये पता चल जाएगा। और ब्लाइंडेड, अनब्लाइंडेड, ये सब टर्म्स सब फार्मेसी में कॉमन आपने गो थ्रू की होगी। सो ये सब स्टडी टाइटल में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद प्रोटोकॉल में रहता है कि सैंपल साइज कितना है, कितने पेशेंट इनरोल होने वाले। अगर ये मेरी डायबिटिक स्टडी है तो डायबिटिक स्टडी में हार्डली, yes, is depend on the phases as well, but diabetic study में maximum 300 to 400 पेशेंट इनरोल होते हैं। सो कितने पेशेंट इनरोल है ये सब इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में होगा। उसके बाद कौन सा ड्रग है जो जिसके लिए हम ये क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, वो ड्रग का नाम होगा। उसके साथ कौन, अगर ये स्टडी कॉम्बिनेशन ड्रग पे है, अगर मीन्स अपना स्टडी ड्रग के साथ और भी कुछ कॉम्बिनेशन है ड्रग के, सो वो ड्रग इंफॉर्मेशन उसमें आएगा। उसके बाद इनफॉर्म कंसर्न, जो पेशेंट इनरोल होने वाले हैं स्टडी में, फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे एक कंसर्न फॉर्म साइन करवा लेते हैं हम। तो वो इनफॉर्म कंसर्न फॉर्म है, उसमें सब दिया रहता है कि ये ट्रायल कितने दिन तक चलेगा एंड वो सब
वो साइन डॉक्यूमेंट रहता है, इनफॉर्म कंसेंट। ये एक है डॉक्यूमेंट जो प्रोटोकॉल में आता है। उसके बाद इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज, मींस क्या क्राइटेरियाज है पेशेंट के स्टडी में इनरोल होने के लिए और क्या है एक्सक्लूड होने के लिए। सो इफ कंडीशन है कि अगर कोई विमेन है, जो विमेन्स है वो क्लिनिकल ट्रायल में इनरोल हो रही है और उसमें अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो अगर स्टडी का क्राइटेरिया है कि प्रेग्नेंट लेडीज नहीं चाहिए तो वो हम एक्सक्लूड कर देंगे। सो this is just the example. So yes, so likewise these are all the things which covered into the protocol. So we discussed this particular topic differently. This is a very vast topic, protocol. So after protocol there is a CRF design. By using this protocol, the information, all the information using in the protocol, we design CRF. तो CRF क्या रहता है, जो स्क्रीन हमें डेटाबेस में दिखती है वो स्क्रीन्स पहले डेटा मैनेजमेंट टीम को बना के प्रोग्रामिंग टीम को भेजनी पड़ती है। सपोज देयर इज अ डिफरेंट विजिट 1 विजिट, मतलब विजिट वाइज पेशेंट साइट पे आता है। अगर विजिट 1 है तो पेशेंट आएगा साइट पे, वो पर्टिकुलर ड्रग लेगा साइट पे और फिर विजिट 2 के लिए आएगा। सो ऑल दिस विजिट वी नीड टू कैप्चर इनटू द वन डॉक्यूमेंट विच इज CRF डिजाइन। सो यस, डेटा मैनेजमेंट टीम वो CRF डिजाइन करती है, वो पूरा डॉक्यूमेंट रहता है। उसका भी एक टूल रहता है इन डिजाइन करके। इन डिजाइन में हम वो सब इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्लाइड्स, स्क्रीन्स। सो once we complete this particular eCRF design, we shared this particular eCRF design document to database programmer. सो डेटाबेस प्रोग्रामर क्या करता है, वो जो सब स्क्रीन्स जो हमने डॉक्यूमेंट में क्रिएट किए हैं वो सब इनकॉर्पोरेट करता है सिस्टम में, मीन्स डेटाबेस में। कोई भी डेटाबेस, वो डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी, रेव भी हो सकता है, क्लिनिकल वन भी हो सकता है, इनफॉर्म भी हो सकता है। सो लाइकवाइज डेटाबेस प्रोग्रामर वो इनकॉर्पोरेट करता है सिस्टम में। वंस ही कंप्लीट दिस एक्टिविटी, सो वो इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो हम डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हैं कि वो बराबर से किया है कि नहीं। उसके लिए हमें QC करना पड़ता है, उसको हम UAT बोलते हैं इन CDM लैंग्वेज। सो हम चेक करते हैं कि वो जो स्क्रीन्स है जो डेटाबेस प्रोग्रामर ने बराबर इनकॉर्पोरेट किया है या नहीं। सो बाय यूजिंग दिस CRF डॉक्यूमेंट वी जस्ट क्रॉस चेक these particular slides, screens. So any doubt? Okay. So वो QC हो गया। उसके बाद QC होने के बाद वो जो ऑल द स्क्रीन से प्रोडक्शन मोड में वो पुश करता है जो डेटाबेस प्रोग्राम है। देन ऑनगोइंग डेटा जो है साइट, उसमें डेटा अपडेट करते हैं एंड वी यूज टू सी दिस ऑल द डेटा। So likewise these all the activities covered in the study start, but there are another activities as well there. For example, data management plan, ECCG, ECRF completion guideline, SAP document is there, SAE document is there. So these are this is a document we need to create into the, but these protocols are design, database design, validation, these are the important terms. So we need to learn this in detail in a separate session. Then study conduct. So ये पार्ट है जो बहुत लेंदी होता है, and we clean all the data into this phase. So database programmer push करता है जो भी पर्टिकुलर डेटा है वो प्रोडक्शन मोड में। सो वो स्टडी आ गया अभी कंडक्ट में। सो कंडक्ट में स्टडी आने के बाद सो फर्स्ट इज अ डेटा एंट्री एंड डेटा लोडिंग। सो अभी आ गया प्रोडक्शन मोड में जो डेटाबेस है वो। सो साइट क्या करेगी, साइट एंट्री करेगी। अभी जो पेशेंट है हॉस्पिटल में जाएगा ड्रग लेने के लिए, वो वहां पे उसका तो सब मैम, इंफॉर्मेशन। हाँ यस, sorry to interrupt. Some students say slides are not visible. स्लाइड्स। All of you, please tell slides are visible. Yes, Sanjay. In the Snehal, you are able to visible my slides? in the bottom of the Yes, screen, can ma'am. you just hide that? Okay. Then we can So see I the full. think the issue is with them only. Okay, okay. No, the underneath the screen, you have to stop screening, right?
So if you can hide that, so we can see full screen in the bottom. Stop sharing. That Okay. box is, yes. Now Okay. it is. Okay. Yes. Thank you. So, okay. So study in conduct phase. So I earlier explained कि पेशेंट साइट पे जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, अगर कुछ विजिट उसकी प्लान है तो विजिट के लिए वो हॉस्पिटल जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन वो वहाँ पे साइट पे कैप्चर होगी, और जो साइट पर्सनल है वो साइट वो जो इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में एंटर करेगी, देन वी able to visible this particular information into the database. So वो जो information है वो site पे capture होता है, then we able to visible this particular information. So okay, so then data entry हो गया, उसके बाद data entry होने के बाद discrepancy management. So data entry site वहाँ पे करती है, और data entry जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए. अगर पेशेंट का एज जो दिया है वो 18 to 32 है, तो पेशेंट का एज उसके इन बिटवीन ही चाहिए. अगर प्रोटोकॉल में दिया है पेशेंट का एज तो वो ही चाहिए. अगर पेशेंट का एज उन्होंने 64 डाला तो दिस इज अ डिस्क्रिपेंसी. सो वो सिस्टम में फायर होगा कि प्रोटोकॉल में तो ये ही एज गैप दिया है और यहाँ पे जो है वो ये है, तो उसको डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट बोलते हैं. देन डेटा मैनेजर क्या करेगा, उस पर क्वेरी डालेगा कि ये एज गैप जो है प्रोटोकॉल में तो इतना ही दिया है और आपने कैप्चर किया इतना कैप्चर किया है. सो दिस इज अ डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट. सो डेटा मैनेजर को वो डेटा क्लीन करना होता है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से, कि प्रोटोकॉल में जो इंफॉर्मेशन दिया है वो जो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन डाला है उससे मैच कर रहा है या नहीं. अगर नहीं तो वो डायरेक्टली क्वेरी डालेगा साइट को, और वो अपना कंसर्न सीआरए को रेज करेगा, क्योंकि सीआरए जो है वो पर्सन है इन बिटवीन साइट एंड डेटा मैनेजमेंट टीम, जो मिडल पर्सन है. तो सीआरए यूज टू विजिट साइट इन अ वीकली बेसिस. सो हम वो कंसर्न रेज करेंगे कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट डाला है. तो यही हमारा काम है कि डेटा क्लीनिंग करना है एज पर प्रोटोकॉल. उसके बाद है सेफ्टी डेटा रिकंसिलेशन एंड कोडिंग टीम, coding terms. So safety data reconciliation means the vendor reconciliation. So we are the data in two databases. So one is a clinical database and second is a safety database. So by using these two databases, we need to reconcile data. So same if we observe any mismatches, कुछ हमें discrepancy मिल रहा है, तो we directly raise query into the database. We have this provision to raise query into database. So मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि database कैसे दिखेगा. वो अपकमिंग सेशन में तो आ ही जाएगा कि database में query कैसे हम raise कर सकते हैं, फिर वो कैसे साइट को दिखेगा, फिर वो साइट कैसे रिजॉल्व करके फिर हमें रिवर्ट करके कि ये हमने इश्यू आपका रिजॉल्व कर दिया, फिर वो अपना कमेंट डालेगी और बस ऐसे वो सब चलता है. उसके बाद हम आते हैं कोडिंग तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेपरेट कोडिंग टीम, जो कोडिंग करती है. उसके लिए वो जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रखने के लिए, बिकॉज वी हैव डिफरेंट टीम्स. सो कोडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो साइट है वो अगर डायबिटीज है, डायबिटीज के वो 3 तरह के नाम डालेंगे, डायबिटीज मेलाइटस, ओनली डायबिटीज, डी और DM ऐसे भी डालते हैं, कभी वो शॉर्टकट डालते हैं. तो मेडिकल कोडिंग क्या करता है, वो जो ऑल टर्म्स है वो एक सीक्वेंस मेंटेन करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है. जो बाकी जो टीम्स है, साइज प्रोग्रामिंग टीम वगैरह है, उनको जो फॉर्मूलाज वगैरह लगाते हैं उसके लिए वो इजी जाता है, इसलिए वो कोडिंग इज इम्पोर्टेंट. सो कोडिंग में भी डिफरेंट डिक्शनरीज है, मेट्रा है, हुडीडी है, और भी डिफरेंट डिक्शनरीज है जो कोड करती है 8 टर्म्स, कॉन्मेट टर्म, मेडिकल हिस्ट्री टर्म. So yes, we discussed this in detail. Then query generation. So yes, I already said कि अगर मुझे कुछ मिसमैच दिख रहा है एज पर प्रोटोकॉल में, अगर नहीं है और साइट ने कुछ अलग ही डाल दिया है डेटाबेस में, तो मैं जाके क्वेरी करूंगी कि कैन यू प्लीज चेक दिस into the protocol or in with the source document. So yes, this is a query generation. एंड देन क्वेरी रिजोल्यूशन मीन्स अगर मैंने कुछ क्वेरी डाला है कि ये पर्टिकुलर एज का जो मैंने बोला कि ये एज इनकरेक्ट है, तो फिर मैं क्वेरी डालूंगी, फिर साइट वो क्वेरी
चेक करेगी कि यस ये दिस इज अ डिफरेंट, मीन्स वो एरर भी हो सकता है, टाइपो एरर भी हो सकता है, तो साइट जाके वो डेटा चेंज करेगी और फिर रिवर्ट करेगी कि यस अपडेटेड करके। सो साइट वो डेटा अपडेट करने के बाद वो मैं मेरे बकेट में आएगी और मैं वो क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। सो क्वेरी रिजोल्यूशन एंड मैनुअल चेक। सो कुछ चेक्स टू टाइप्स के रहते हैं, एक है मैनुअल चेक रहता है और एक सिस्टम चेक्स रहता है। सो सिस्टम चेक वी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सिस्टम एट अ टाइम ऑफ सेटअप। तो वो डायरेक्टली अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी मिला साइट और प्रोटोकॉल के बीच में, वो डायरेक्टली पॉपुलेट होगा डेटाबेस में, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। सो कुछ चेक्स ऐसे हैं जो हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते डेटाबेस में, वो डेटाबेस नहीं लेता, तो वो हम मैन्युअली करते हैं एक्सेल शीट में। सो वो हमें वो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है कि एक्सेल शीट में ये पर्टिकुलर चेक्स है, तो वो हम एवरी मंथली बेसिस पे वो चेक्स हम करते हैं कि वो भी लॉजिक चेक रहते हैं कि अगर इसका उसका एज जो है वो 30 और 60 के बीच में नहीं है तो क्वेरी रेज करो। सो वो हम मैन्युअली क्वेरी रेज करते हैं। सो यस दीज all covered in the conduct. Any confusion, any issue? I assume आपको सब समझ में आ रहा है। Okay. So last phase is a study closeout. So study closeout, once you know all the data clean in a study conduct, हम क्या करते हैं, ऑल दी डेटा क्लीनिंग सब क्लीनिंग करते हैं एज पर प्रोटोकॉल, हमें सब क्लीन करना है, स्टडी विजिट क्लीन करना है। सो वंस यू नो ऑल दी विजिट कंप्लीटेड, सपोज हमारे प्रोटोकॉल में दिया है कि 3 विजिट होगा पेशेंट का। सो अगर वो तीनों विजिट कंप्लीट हो गया, पेशेंट ने वो सब मेडिसिन ले लिया, सब फॉलोअप हो गया, उसके बाद तीनों विजिट का डेटा वो डेटाबेस में कैप्चर होगा और वो डेटा हमें क्लीन करना है एज पर प्रोटोकॉल। अब अभी वो क्लीनिंग भी सब हो गया और अभी हमारा डेटा एग्जैक्टली मैच कर रहा है प्रोटोकॉल के साथ, देन वी नीड टू क्लोज दिस पर्टिकुलर स्टडी। सो हमें स्टडी क्लोज आउट के टाइम पे क्या देखना है कि अपना हमारा डेटा जो है वो क्लीन है, हमने जो भी क्वेरीज रेज की है इन बिटवीन वो सब रिजॉल्व हुई है, वो सब क्लोज हुए डीएम के एंड से भी और साइट के एंड से भी, वो हमें चेक करना है और अपना जो प्रोटोकॉल में पर्टिकुलर डेटा दिया है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और जो नहीं मैच कर रहा है वो डेटा, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। सो ये सब अगर होता है सब, तो हम स्टडी लॉक कर सकते हैं। सो yes, and after study closeout there is archival. So whatever documents we generated in all the study phases, so we need to archive this document. So yes, this is the archival phase after closeout. So yes, these is the 3 phases. So कुछ भी ये 3 फेज में कुछ भी है क्वेरी तो प्लीज आस्क। Are you going to show us the sample protocol and Actually, currently not available, but we'll show this in our upcoming session in a protocol. We have a separate topic on a protocol, so you know we show this particular protocol in that sessions. So currently, I do not have any protocol available. no, going forward? I'm just asking. Acha, you Not today. Yeah, not today. yes, this one. You Your just voice said is a little low. Can you please uh, increase your voice? and now can you hear me? Yes, yes. So tell me your question. No, I'm asking that are you going to show us the sample protocol and Yes, yes, explain? Okay. yes, yes, yes. In detail, in detail. And the manual checks also you said Yes, yes. you do that in It a will- Excel sheet, will- right? Yes, yes. In Excel sheet, we'll show that as well. Okay. Yeah. Thank you. Hmm.
Everything will show in the upcoming session. CRF design, how CRF document looks like, how database design is performed, validation, UAT, all everything will show and discuss separately this topic. Okay, perfect. Thank you. So I assume no one is having any questions. So we'll ask one question. Can anyone tell me what all activities covered into the study conduct phase? भी हेजिटेट, कुछ भी मतलब कुछ एक भी एक्टिविटीज आपको याद है कंडक्ट में जो हम करते हैं? Data cleaning. राइट, एब्सोल्युटली राइट. You discrepancy management in that. Yes, yes, absolutely right. And coding also. Coding also, essay reconciliation, query generation. Yes, yes, right. Thank you. So we'll move forward. So yes, these are the different tools which we used into the CDM. These are the software databases. So Oracle Clinical is there, Rave, Inform Clinical one. So these are the, and Rave is the latest and most important tool used most of the companies, CDM companies, and then Oracle Clinical, Inform Clinical one. Yes. So yes, these are the tools. Then opportunities. So these are the different opportunities. So you can go for the medical coding as well if you are a fresher, if you not having any experience. So you go for medical coding, programming, clinical research means CRAs, data manager, data entry operator. So yes, these are the different opportunities. Then skills required for the clinical data management. So these are all the skills you required for the clinical data management. So knowledge of drug development. Yes, ये भी हम डिस्कस करने ही वाले हैं अपने अपकमिंग सेशन में. ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस. So जो फार्मा बैकग्राउंड से उनको पता होगा ड्रग डेवलपमेंट एंड ऑल. जो नहीं है उनके लिए ये ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सीडीएम में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस जो इंटरव्यूज में भी पूछते हैं. देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीएच जीसीपी, ये भी हम कवर करने ही वाले हैं कि व्हाट आर ऑल द गाइडलाइंस इन्वॉल्व इनटू द क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स. Then yes, computer skill, because we need to work on computer only. अभी एक्सेल शीट है, वर्ड डॉक्यूमेंट है अभी, और जो मेल वगैरह है वो सब कंप्यूटर, इसलिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो होना ही चाहिए. लीडरशिप स्किल मीन्स हम अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमें लीडरशिप स्किल भी चाहिए ही, कि हम एटलीस्ट कुछ लीड कर सके. तो वो हमें अप्रेजल, हाइकिंग, वो टाइम पे हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लीडरशिप. देन रिकॉर्ड कीपिंग. सो सीडीएम मतलब रिकॉर्ड तो है ही, रिकॉर्ड बहुत सारे रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व होंगे. सो वो रिकॉर्ड हमें अच्छी तरह से मेंटेन करना आना चाहिए. सो रिकॉर्ड कीपिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. देन टाइम मैनेजमेंट. सो यस, सो सीडीएम का है कि वो हमें डेली बेसिस पे टास्क रहता है. अगर मैं कंडक्ट स्टडी में काम कर रही हूँ तो मुझे अभी अगर आप सीआरओज में जाते हो तो वहां पे आपको मल्टीपल स्टडीज असाइन होगी. एक स्टडी ऐसे नहीं कि आप एक स्टडी पे ही काम कर रहे हो, तो आपको 3 to 4 स्टडी पे एट ए टाइम काम करना होगा, और आपको उस हिसाब से वो सारे स्टडी का काम मैनेज करना होगा टास्क वाइज. सो यस, टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्युनिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस. So yes, these are the all skill important into the CDM. So if you have any doubt, please ask in between. Just stop me and just ask me. Then yes, these are the some interview questions. So अभी आपको सीडीएम का बेसिक नॉलेज है, ठीक है, बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही. बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपने जो भी आपका जो भी डिग्री है, अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से है
तो आपको वो जो बेसिक नॉलेज जो आपको 4 इयर्स में कवर हुआ है वो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो आप इंटरव्यूअर का मेन फोकस आपके स्टडी पे रहेगा, आपकी डिग्री पे रहेगा, क्योंकि आपको वो इन डिटेल सीडीएम नहीं पूछ सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज वो पूछेगा और बाकी सब क्वेश्चंस आपके आएंगे डिग्री पे, जो आपने डिग्री में कवर किया है। सो आपको पता होना चाहिए, अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में और कौन से टर्म्स है, व्हाट इज अ फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, बायो इक्विवेलेंट, व्हाट इज अ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, वो सब आपको पता होना चाहिए। सुटिक्स में क्या है, ड्रग रिलेटेड, ड्रग पंचिंग, टैबलेट, कैप्सूल, ये सब जो जनरल टर्म्स, बेसिक टर्म्स रहता है फार्मेसी का, वो आपको पता होना चाहिए। आई डोंट नो अबाउट एमएससी एंड बीएससी बिकॉज मैं फार्मा बैकग्राउंड से, इसलिए मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि फार्मा में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सो वो आपके हिसाब से जो है, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में हो एक्सपर्ट, कंप्यूटर में हो, जो भी आपका एक्सपर्टी है, सो आपको बेसिक जो डिग्री में आपको हुआ है वो सब आपको पता होना चाहिए। सो अगर वो आपको पता है, वो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। So yes, these are some questions, interview questions. So in our upcoming session, we'll go through in detail what kind of interview questions are there. Means how we need to say what you need to say in particular questions. So yes, we have some 20 to 25 questions, interview questions. So yes. Then employment. So what are all the companies who hire CDM or CDM persons? So yes, these are some companies. Uh, TCS is there, IQVIA, Cognizant, Seniors, Labcorp, Novartis, Parexel, Icon, PPD, Medpace, Chiltern, Coans and other sponsor companies mean जो कोर फार्माज रहते हैं, जैसे कि ग्लेनमार्क है, सिप्ला है, सन फार्मा है, ये सारी कंपनीज भी है। सो देयर आर मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन इनटू द सीडीएम। Okay, so this is the last slide. So anyone, any question? Yes, students, if you have any query, kindly ask the ma'am. Okay, I have some other questions. Say, so what do we do as a clinical data manager or clinical data associate during clinical trials? So yes, I already explained. Explain this is protocol. We need a protocol, and then all the information. So yes, then what background? So yes, so background wise, we background in science can be BSc, MSc, BPharm, MPharm, PharmD, biotechnology. Apart from this, understanding of basic computer, MS Word, Excel, PowerPoint, we need to work on an Excel sheet, MS Word, PowerPoint. So you need this basic information of computer. Then okay, since certification. So this is a common question ki do I need any certification course and all? Yes. So you need the basic information of the CDM if you enroll for particular job role. So yes, then where should I go? Okay, so where should I learn? So yes, I suggest this is the correct platform for to learn and CDM in detail. So for this, you connect with Amit for the more information. So yes, I'm done. Can you please say something or any question, any issues, or you want to explain me any slide again? और कुछ डिफिकल्टीज है आपको अंडरस्टैंडिंग में, कुछ अंडरस्टैंडिंग गैप है, अगर मुझे और भी कुछ आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ऐसे बताना चाहिए था, सो प्लीज टेल मी।
Can you just shortly review all? Some of students requested this. What? Shortly review the all slides. Shortly review means. Review means just overview, like. So I need to explain again or No, just no, show? not need to explain. Just show. Yeah. Okay. Okay. So after this session, I'll share the slides as well. So no worries. So this is the first slide. What is a clinical data management? You know, ये पढ़ के आपको कुछ समझेगा तो नहीं, because मैंने तो एकदम लेमन लैंग्वेज में बताया कि क्यों सीडीएम इम्पोर्टेंट है एंड व्हाट इज अ सीडीएम. सो वो बस याद रखो. And these are the stages and the different stakeholders. आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो वो स्लाइड नंबर वो लिख के रखो कि ये स्लाइड पे मुझे क्वेश्चन है. अगर आपको इन बिटवीन नहीं पूछना है तो आप लास्ट में भी पूछ सकते हो कि ये स्लाइड नंबर पे मुझे क्वेश्चन है, फिर मैं जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी. Why CDM is ओके. सो की मेंबर्स, इस पे अगर कुछ है क्वेश्चन तो प्लीज आस्क. Hello, ma'am. There is one question. What is the entry level position in clinical research? Entry level. Yes. There is one position, clinical entry operator. So not getting question key. Can you please repeat? What is the entry level position in clinical research? देयर इज वन डेटा एंट्री ऑपरेटर करके एक रहता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जो साइट पे जो डेटा एंट्री करता है, जैसे पेशेंट आता है विजिट के लिए तो जो इंफॉर्मेशन रहता है जो एंट्री साइट एंट्री करता है, सो वो जो एसोसिएट रहता है वो एक होता है कि डेटा एंट्री एसोसिएट. सो वो एक रहता है एंट्री लेवल पे जो है वो एक, ये एक ही रहता है जो
एंट्री लेवल पे जो रहता है कि जो डेटा एंट्री करता है डेटाबेस में, जो डेटा मैनेजमेंट टीम विजिबल होती है वो डेटाबेस में। डेटा एंट्री का एक सेपरेट टीम ही रहता है, जो टीम्स सिर्फ डेटा एंट्री करती है डेटाबेस में, बाकी कुछ एक्टिविटीज नहीं करती। जैसे कोडिंग का अलग टीम रहता है, वैसे डेटा एंट्री का भी एक अलग से टीम रहता है। जो टीम है वो डेटा एंट्री ही करता है, बस डेटा एंट्री करता है। जो CRFs रहता है उस पे डेटा देख के बस डेटाबेस में एंट्री करना है। वो एकदम इजी जॉब है, बस आपको देखना है, पेपर में से देखना है और डेटाबेस में एंट्री करना है, दैट्स इट। I have a question. CRF Hmm. design, you said Mhm. in startup Mhm. phase, and in closeout, you are showing CRF tracking. So, Mhm. what is the difference between both? Okay, close out. CRF ट्रैकिंग मीन्स जो भी हमने CRF मीन्स जो हमारा डेटाबेस में जो CRFs है ना, वो CRF। सो जो भी CRF में डेटा कैप्चर हुआ है, जो ट्रैक हुआ है, वो ट्रैकिंग। और ये जो CRF है वो CRF डिजाइन। सो CRF ट्रैकिंग मीन्स डेटाबेस का जो स्क्रीन है वो, और CRF डिजाइन जो हम डेटा मैनेजमेंट टीम जो क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट में, जो पेपर डॉक्यूमेंट में क्रिएट करते हैं वो। और CRF मीन्स अपना डेटाबेस का CRF, समझा? Okay. So, tracking in that sense, the CRF, we are just In the database। okay. एंड डिजाइन Okay. मीन्स जो डेटा मैनेजमेंट टीम क्रिएट करके जो डेटाबेस प्रोग्रामर को भेजेगा, और डेटाबेस प्रोग्रामर वो इनकॉर्पोरेट करेगा सिस्टम में और जो डेटाबेस में। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। Okay. Got it. Thank you. Okay, tools and opportunities. Then these are the skills. हेलो Yes. मैम, मैं बीएससी फाइनल ईयर में हूँ, तो मैम Mm-hmm. बीएससी करने के बाद सीआरए और मेडिकल कोडिंग कौन सा पोजीशन में जॉब इजीली मिलता है, और कौन सा पोजीशन का सैलरी अप्रोक्स कितना है? ओके, सो ये पोजीशन एज अ फ्रेशर, ये पोजीशन का आपको ये डिपेंड कि कौन से पोजीशन के लिए इंटरव्यू है। अगर आप कहाँ पे अगर देखते हो कि हाँ ये पोजीशन के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए है, कोडिंग के लिए है, वो सब है, तो बेस्ट तो एज अ फ्रेशर आपको सब बेस्ट है। मेडिकल कोडिंग वैसे CRA, डेटा मैनेजमेंट, SaaS प्रोग्रामिंग, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, एवरीथिंग इज बेस्ट। बिकॉज आपको जस्ट एंट्री करना है, जॉब चाहिए। एज अ फ्रेशर जॉब मिलना मतलब बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो जो मिलता है go through it। and salary wise, it depend on your education and company। so अगर आप BPO में जाते हो तो BPO आपको ऑफर करती है 1.9 to 2 lakhs per annum। and if you have postgraduate, then it depend on company to company। some companies can offer, कुछ कंपनी आपको MSc और M.Pharm के बेसिस पे 2.5 तक का देती है, और कुछ कंपनी आपको B.Pharm करो, MSc करो, BSc करो, सब पे आपको, मतलब आप PG भी हो और ग्रेजुएट भी है, आपको सेम ऑफर करेगा। 2 to 2.5 इज द स्टार्ट सैलरी। और अब अगर आप कोर में जाते हो, अगर आप प्रॉपर कोर कंपनी में जाते हो, प्रोडक्शन में जाते हो, अपार्ट फ्रॉम CDM में बता रही हूँ, तो उसका और भी कम है। आपको वो डायरेक्टली 1.2, 1.5, 1.7 ऐसे स्टार्ट मिलता है। तो कोर से अच्छा कि आप
ये सीडीएम में स्टार्ट करो तो उसमें बहुत ही मतलब ग्रोथ भी अच्छा है, कंपनीज भी बहुत सारी है और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी है। मतलब सीडीएम में ही आपको बहुत सारे रोल्स मिल जाएंगे। ओके मैम हाँ हाँ ओके मैम। मैम हाँ मैंने बीएससी एंड डी फार्म साथ में कर रहा है वो, तो मैम इसके बाद डी फार्मा एंड बीएससी के बाद बी फार्म करना या एमएससी करना अच्छा है? तो आपका बीएससी है? बीएससी एंड डी फार्मा साथ में कर रहा है वो, इसी अच्छा आप साथ में कर रहे हो, हाँ। तो बेटर टू गो विथ एम फार्म और एमबीए। अगर आप एमबीए करते हो तो वो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। और एम फार्म में तो सजेस्ट करूंगी, अगर आपको पीजी करना है तो एमबीए करो। एमबीए इज अ बेस्ट ऑप्शन। नहीं मैम, मैं बी फार्म नहीं, डी फार्म, डिप्लोमा इन अच्छा फार्मेसी एंड डिप्लोमा बीएससी। आप, अच्छा अच्छा आप डिप्लोमा डी फार्म कर रहे हो। अच्छा सो ठीक है, आप बीएससी के बेसिस पे भी एमबीए कर सकते हो, राइट? यस मैम। तो आपको डिप्लोमा के बाद बी फार्म करना पड़ेगा, फिर एम फार्म करना पड़ेगा। तो आपको और कितने साल लग जाएंगे? उससे अच्छा आप डायरेक्टली पीजी करना है आपको, पीजी तक जाने के लिए अभी पीजी, एक तो आप बीएससी का कोई पीजी करो, एमएससी करो, अदरवाइज आप एमबीए करो। आप एम फार्म का मतलब बी फार्म करके कोई ये नहीं, क्योंकि आपको डिग्री तो ग्रेजुएट का ही मिलेगा। उससे अच्छा कि आप एमबीए करो, पीजी, और एक तो आप एमएससी करो। ये दो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। मैम एमएससी कौन सा सब्जेक्ट में बेस रहेगा? क्लिनिकल रिसर्च का कोई अलग ये होता है क्या, एमएससी अगर स्पेशलाइजेशन? अभी मोस्ट ऑफ द लोग अगर सीडीएम में आना है तो वो माइक्रो में बहुत लोग करते हैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में। ओके So मैम, थैंक most of the clinical research related topic covered in the microbiology. So micro is best. Ma'am, ma'am, can you please repeat the stages of CDM? 3 stages है वो ही ना? Yes, ma'am. This one. Okay. So there are 3 phases covered into No, ma'am, the. no. Yes. ये भी नहीं, और वो डायग्राम थी मैम, एक डायग्राम के इसमें। Okay. नो मैम। स्टेजेस में के स्टार्टअप है, कंडक्ट है और क्लोज आउट। ये एक डायग्राम है उसके। अच्छा वो फर्स्ट वाला डायग्राम है वो, ये वाला, यस राइट? मैम, यस मैम। ओके। ये so yes, ये है stages of CDM. This is a schematic diagram. So first and the most important document comes into the CDM, and first document is a protocol. So protocol is the most important part. जो हम बोल सकते हैं कि हार्ट ऑफ द ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्रोटोकॉल के बेसिस पे ही हम बाकी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। सो हाउ वी गेट प्रोटोकॉल? सो मेडिकल मॉनिटर, मेडिकल राइटिंग टीम, सो वो सब लोग हैं प्रोटोकॉल क्रिएट करते हैं। स्पॉन्सर, बेसिकली जो स्पॉन्सर रहता है, स्पॉन्सर कंपनी रहती है, उससे हमें प्रोटोकॉल मिलता है। सी स्पॉन्सर कंपनी मीन सपोज ग्लेनमार्क इज अ स्पॉन्सर कंपनी। अभी वो ग्लेनमार्क है, उनके ग्लेनमार्क के पास अभी एसोसिएट्स नहीं है अभी काम करने के लिए, और उनको ट्रायल भी कंडक्ट करने है। तो ग्लेनमार्क क्या करेगा? वो अपनी वो जो प्रोटोकॉल है वो दूसरी कंपनी को देगा। फॉर एग्जांपल टीसीएस को वो पर्टिकुलर स्टडी आउटसोर्स करेगा कि हमें ये पर्टिकुलर काम देगा। मतलब ग्लेनमार्क में, टीसीएस में ऐसे ही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं। सो ग्लेनमार्क आउटसोर्स करेगा वो पर्टिकुलर स्टडीज टीसीएस को। सो टीसीएस का जो ग्लेनमार्क है वो स्पॉन्सर रहेगा। सो अभी मैं अभी टीसीएस में काम कर रही हूँ, तो मुझे अभी ग्लेनमार्क की तरफ से एक प्रोटोकॉल आया, तो ग्लेनमार्क ने मुझे काम दिया कि यस,
कि ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए मुझे काम करना है, सो आई रिसीव प्रोटोकॉल फ्रॉम द स्पॉन्सर कंपनी। अभी ये तो एग्जांपल दिया, ऐसे ही रहता है कि स्पॉन्सर कंपनी शेयर करता है पर्टिकुलर प्रोटोकॉल टू द आउटसोर्स कंपनी। तो वो जो TCS है, सीनियर्स है, ग्लेन सॉरी कॉग्निजेंट है, ये सब जो है वो आउटसोर्स है, थर्ड पार्टी है। और जो ग्लेनमार्क है, नोवार्टिस है, और ये जो है कोर कंपनीज, वो है स्पॉन्सर कंपनी, जो वो स्पॉन्सर है, मतलब वो है क्लाइंट हमारा और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। सो मुझे अभी स्पॉन्सर की तरफ से प्रोटोकॉल रिसीव हुआ। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है उस प्रोटोकॉल में हमें सब इंफॉर्मेशन मेंशन रहेगा स्टडी रिलेटेड। So first, I need to review the protocol thoroughly, and by using this protocol, I need to perform बाकी activities. So बाकी activities means जो है DMP design, data management plan। data management plan में जो सब ongoing activities रहता है, means timeline, कब मेरे स्टडी में पेशेंट इनरोल होगा, कौन कौन मेरे स्टडी में है, उनके सब कॉन्टेक्ट डिटेल्स डेटा मैनेजमेंट प्लान में इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद मेरे स्टडी की जो एक्टिविटीज है, सो मैंने कंडक्ट में कौन से एक्टिविटीज है, मैंने जो एक्सप्लेन किया, ऐसे रिकंसिलेशन है, उसका वेंडर कौन है, मतलब ऐसे रिकंसिलेशन के लिए हमें पर्टिकुलर एक वेंडर चाहिए होगा। ऐसे रिकंसिलेशन का जो डेटा है वो हमें पीवी फार्मेको विजिलेंस जो टीम रहता है उनके तरफ से मिलता है। सो वो भी है कि वेंडर कौन रहेगा, वो सब इन डिटेल हम तो बाद में एक्सप्लेन में वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट ये DMP में वो सब ऑनगोइंग बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो रहता है, और वो हमें ऑनगोइंग बेसिस स्टडी बेसिस पे वो अपडेट भी करना रहता है। अगर स्टडी में कुछ टाइमलाइन है तो वो मुझे DMP में जाके अपडेट करना पड़ेगा। स्टडी में अगर कोई एसोसिएट छोड़ के गया तो वो मुझे DMP में अपडेट करना पड़ेगा। अगर कोई आया, कोई नई न्यू मेंबर हमारे स्टडी में आया तो वो मुझे DMP डॉक्यूमेंट में अपडेट करना पड़ेगा, और उनकी उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी। और जो SOPs है, हम जो डॉक्यूमेंट्स और ट्रेनिंग जो कर रहे हैं वो स्टडी रिलेटेड, वो भी हमें DMP डॉक्यूमेंट में वो सब इन्वॉल्व रहता है। देन CRF डिजाइन, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, क्या रहता है CRF, जो ऑलरेडी वो जो हो जाएगा, मतलब स्क्रीन्स, मतलब विजिट कैसे होगा, पेशेंट कब विजिट के लिए आएगा, वो सब क्वेश्चनर्स रहते हैं। बस डॉक्यूमेंट रहता है कि डेटाबेस में वो कैसे दिखेगा, जो डिजाइन है वो पहले डेटा मैनेजमेंट टीम क्रिएट करती है, वो देन डेटाबेस प्रोग्रामर को वो भेजती है, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वाया ईमेल और वाया शेयर्ड पाथ। सो देन प्रोग्रामर क्या करेगा, वो देखेगा कि वो कैसे कैसे स्क्रीन है, कैसे कैसे है, फिर वो अपने लॉजिक से वो इनकॉर्पोरेट करेगा डेटाबेस में। सो डेटा मैनेजर वो नहीं कर सकते, कि उसके लिए हमारे पास सेपरेट टीम है, प्रोग्रामिंग टीम। सो डेटा मैनेजर वो नहीं कर सकते कि चलो अभी डिजाइन भी डेटा मैनेजर ही कर लिया और फिर वो सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो भी डाल दिया। वो इसलिए हमारे पास प्रोग्रामिंग का सेपरेट टीम है। सो डेटाबेस प्रोग्रामर वो इनकॉर्पोरेट करेगा। उसके बाद डेटा कैप्चर होगा कि अभी वो सब स्क्रीन डेटाबेस प्रोग्रामर में तो डाल दिया अभी सॉफ्टवेयर में, बट वो डेटा मैनेजर को कंफर्म करना पड़ेगा कि वो हमने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था उसके हिसाब से प्रोग्रामर्स ने डाला या नहीं डाला, उससे भी कुछ मिस हो सकता है। सो उसके लिए हमें QC UAT करना पड़ता है कि फिर से वो मैच करना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर में जो डाला है वो अपने डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें एक सेपरेट QC करना होता है। सो उसके बाद वो जो हो गया, मतलब वैलिडेशन ही करते हैं हम कि वो बराबर किया है नहीं किया है, प्रोग्रामर ने चेक बॉक्स है वहां पे चेक बॉक्स के जगह पे टेक्स्ट डाला है, ऐसा भी हो सकता है। सो हमें वो सब चेक करना होता है। ये सब हम डेटाबेस के टेस्ट इन्वायरमेंट में करते हैं। अभी डेटाबेस के भी 2 इन्वायरमेंट रहते हैं, एक तो है टेस्ट एनवायरनमेंट जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, मैंने डेटा एंटर करके देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरा है प्रोडक्शन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोडक्शन जो है, जो ऑनगोइंग डेटा है वो उसमें आता है, जो साइट एंटर करती है, जो हम देखते हैं। हम जस्ट प्रोडक्शन में हम क्वेरी रेज करते हैं और डेटा क्लीन करते हैं। टेस्ट डॉक्यूमेंट में हमें
कुछ भी हम R&D कर सकते कि नहीं हमें ये करके देखना है वो करके देखना है, तो वो हम टेस्ट डॉक्यूमेंट में करके देखते हैं। सो फर्स्ट हम टेस्ट डॉक्यूमेंट में चेक करेंगे कि वो सब जो डेटा है वो बराबर है या नहीं है। अगर है, हमें लग रहा है कि नहीं हमने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था प्रोग्रामर के साथ वो और ये जो है डेटाबेस वो मैच कर रहा है, तो हम कंफर्मेशन देंगे प्रोग्रामर को कि जो आपने इनकॉर्पोरेट किया है वो बराबर है। then programmer push this particular data into the प्रोडक्शन में वो पुश करेगा। सो लाइकवाइज ये सब है डेटाबेस प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वैलिडेशन या डिजाइन, ये सब एक इसमें आता है। एंड डेटाबेस लॉग का मतलब तो वो once the all the data clean and exactly match with the protocol, then database log is done। एंड ये जो ऑरेंज में हाईलाइटेड है ये सब है एक्टिविटीज सैस प्रोग्रामर का और बायोस्टैटिस्टिशियन का, जो आफ्टर लॉग जो उनको डॉक्यूमेंट और आर्काइवल करना होता है ये सब। एंड these are the all the stakeholders involved into the clinical data management। Any doubt? Okay, ma'am. No, ma'am. Thank you so much. Hello, ma'am. Yes. After BPharm, there is a industry job is better or MPharm master degree? MPharm is also good and क्या होता है कि अगर हम बीफार्म के बेसिस पे जॉब करते, ठीक है, दिस इज अ गुड ऑप्शन, बट अगर कंपनी में अगर आपको कुछ लेवल अभी आपने ज्वाइन किया उसके बाद आपका प्रमोशन हुआ, बट एक लेवल आता है कि जिसके लिए आपको मास्टर की जरूरत रहती है, कि अभी मैनेजर के लिए है आपका, और फिर एमफार्म की वजह से आपका वो प्रमोशन रुका हुआ है कि आपने मास्टर्स ने किया और वो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मास्टर ही चाहिए, तो एक वो हो सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप साइड बाय साइड मास्टर कर सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो और साइड बाय साइड एक्सटर्नल एमफार्म कर सकते हैं क्या वैसे? हाँ। तो एक है कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और फिर आपको इन फ्यूचर आपको ये भी नहीं होगा कि यार क्या रहता तो अच्छा रहता। तो वो एक बेस्ट है कि आप जॉब अगर आपको बीफार्म के बाद मिलता है तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बीफार्म के बाद भी जॉब मेरे को मिलना। मैक्लिडो फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोडक्शन के लिए मिला है। लॉयड्स में, ओके। हाँ, प्रोडक्शन। यस, गुड कंपनी प्रोडक्शन में ना। 3 ईयर का बॉन्ड ले रहे हैं। हाँ, प्रोडक्शन। एंड इसके साथ स्टार्टिंग मैं आपका कम, मतलब मैं पैकेज में पूछ रही हूँ, बट आई थिंक पैकेज तो आपको कम ही दिया रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन में मोस्टली वो आपको कैंपस थ्रू सिलेक्ट किया है। कैंपस थ्रू सिलेक्ट किया। राइट। तो मैं अभी वहाँ ज्वाइन करके और एक्सटर्नल भी कर सकता हूँ क्या? राइट, वो एक अच्छा ऑप्शन है आपको कि एक्सटर्नली करो, सो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और इन फ्यूचर आपको वो एक्सटर्नल एमफार्म का वैल्यू तो रहेगा ना मैम उस डिग्री का? वो आपका बाद में कंपनीज वो नहीं देखती कि आपने कहाँ से किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, कुछ भी नहीं देखेगी। जस्ट आपके पास वो पीजी का रहना चाहिए कि टैग, हाँ मैंने पीजी किया है। बाकी कंपनी कुछ नहीं देखेगी, आपका सर्टिफिकेट नहीं देखेगी, आपने फर्स्ट क्लास में किया है, सेकंड क्लास में किया है, कुछ भी नहीं, बस आपके पास वो टैग लाइन चाहिए। डिग्री। थैंक यू मैम। Yes, ma'am. There is one question. MBA में कौन सा फील्ड बेस्ट है? ओके, सो इफ आपको अगर ये CDM में आना है तो देयर इज वन MBA, फार्मा MBA, सो वो एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। सो CDM के लिए तो फार्मा MBA ही एक ऑप्शन है, बाकी तो HR वगैरह वो भी है, बट वो तो एक अलग ही लाइन हो जाएगा। HR रहता है, फाइनेंस रहता है, वो तो, बट CDM के हिसाब से आपको देखना है और आपको ये फील्ड में काम करना है तो फिर फार्मा MBA इज बेस्ट। HR में आप जा सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको आपकी एकदम कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा वगैरह है तो आप HR में भी जा सकते हो। HR में आपको MBA करके भी आप इसमें आ सकते हो, फार्मा कंपनीज में आ सकते हो। Ma'am, distance MBA good or regular MBA? Which one is good?
if you get any opportunity after graduation, then don't lose this. After graduation job मिल रहा है तो कर लो, बाद में आप डिस्टेंस पे एमबीए कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर एक्सपीरियंस कोई नहीं पूछता कि आपने एमबीए कैसे किया है, डिस्टेंस में किया है, वो बस आपको देखेंगे कि आपने क्या, कौन सा पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कौन सा किया है। सो एज अ फ्रेशर, ठीक है, आपको एज अ फ्रेशर आपको अभी एमबीए करना है तो ठीक, बट आफ्टर एक्सपीरियंस डिस्टेंस ही बेस्ट रहेगा। अगर आपको अभी जॉब मिल रहा है तो डोंट लूज। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, टीसीएस में मैम फार्मा के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? अभी टीसीएस में जो है लाइफ साइंस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है फार्मा के लिए। आप पीवी में जा सकते हो, आप सीडीएम में जा सकते हो। अभी पीवी में भी बहुत सारे अलग अलग है, आईसीएसआर है जो इनिशियल लेवल पे जो है एईएसई का जो डिफरेंशिएट जो करते हैं वो है, एग्रीगेट रिपोर्टिंग है, मेडिकल राइटिंग है, ये सब पीवी में है। और सीडीएम में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है, जो है मेडिकल कोडर है, प्रोग्रामिंग में है, डेटा मैनेजमेंट में है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ये सब अपॉर्चुनिटीज है। और टीसीएस जैसी कंपनीज में बहुत सारी स्पॉन्सर कंपनीज रहती है, अभी एक नहीं रहेगी, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं। सो वहाँ पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस है टीसीएस कॉग्नि में। मैम, Hello, ma'am. Hello. Yes. After BPharm as a fresher, medical coding is best option or production? Production and medical coding both are the best option, but package wise, production not give you a sufficient package. Starting is very less as compared to coding and CDM PV. Yes, ma'am. But as a fresher आपको कुछ भी मिलता है तो I suggest कि ले लो, Okay. opportunity. मैम अभी क्वालिटी आप एश्योरेंस की CDM हेलो मैम, क्वालिटी एश्योरेंस की अपॉर्चुनिटी है टीसीएस में? क्वालिटी एश्योरेंस का भी एक टीम रहता है। यस, ये तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, क्वालिटी एश्योरेंस का टीम एक सेपरेट टीम रहेगा। सैलरी पैकेज क्या होता है क्वालिटी एश्योरेंस का? सेम एज सीडीएम। ओके मैम। इज इट मोर देन मैम क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन? यस एब्सोल्युटली। ओके मैम। Yes, any query? You can ask. हेलो मैम, प्लेसमेंट असिस्टेंट इज देयर। आपके पास प्लेसमेंट के लिए आप प्लेसमेंट करवा के देते हो मतलब? हाँ, अगर कुछ है मेरे पास अपॉर्चुनिटीज, यस आई शेयर विथ you all guys, or so Yes, I want to share you- about this placement assistance. We help you for the placement. First of all, resume preparation बहुत important है. So we'll do for everyone that resume preparation. We'll give one template and accordingly you have to prepare your own resume. Then we'll monitor live every resume and we'll share which things are important or not. Then after we will take the HR questions, technical round of questions which can be asked during test the actual interview. And then after we'll also share the how to email writing, communication skill, then job searching.
skill. And at the end of the class, I mean, after 2 months, we will share all the opportunities come across India. In according to your location, we will share all the openings जो CDM में है available. So आपको कैसे apply करना है, we also already shared in the class during sessions. और वो आप उसी प्रकार आपको अप्लाई करना है और हम आपके रिज्यूम पे अप्लाई करेंगे. सो इफ देयर इज एनी लाइक बल्क हायरिंग, तो हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें we will share all students who are interested for this position and we will guide them. ठीक है, तो हमारे ट्रेनर मैम भी होंगे एंड आवर लाइक placement coordinator is also there who will help you, like how is the companies, how the is there any bond, what is the location, what is the job description, accordingly you have to prepare. So we will completely guide you to do your best during actual interview. So this is the placement assistance will do. Like on the daily basis we will connect on various companies because we have other courses as well. So we will connect to all the peoples in the clinical research जहाँ पे CRO healthcare ITs हैं या फिर sponsored companies हैं. So anywhere there is opening we will share with you and accordingly we will also take like 15 days of session. Even class completion के बाद भी हम एक sessions लेते हैं 15 दिन में, जो आपको पता दिया जाता है कि कहाँ पे ओपनिंग है, आपका कैसे आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो. Even we also guide share you some information about the companies like email IDs, contacts, if whatever we have come across, so you can also directly approach to those organizations, right? So we will help you and guide you thoroughly. Fine. I hope Thank I solved your query. Yeah. Oh, thank you. Yes, any query? I think there is a query of demo lectures for PVN clinical research. Is it covered, Snehal? No, sir. We already have those tech demo sessions. We will share you the link. Okay, you just connect with the Snehal. Snehal, now you can just start your like information about academy so that everyone can know. And then, if any question, you can continue or conclude. Oh, okay, sir. Okay. Yes, my screen is visible. Yes, ma'am. Okay, so today I am presenting the demo class on clinical data management that organized by the Global Pharma Academy Pune. So moving to the next slide. Global Pharma Academy Pune. We are Global Pharma Academy, which is the ISO and MSME certified national level institute in pharmaceutical and healthcare science, established with a proclaimed objective of becoming a center of excellence to guide students for building their career in the pharma sector. We offer certification programs like pharmacovigilance, advanced SAS, clinical data management, clinical research, medical writing, retail pharmacy business management, pharma marketing, drug regulatory affairs, and medical coding. So, moving to the next slide. Here I welcome the founder of Global Pharma Academy, Amit Kumar Mane. Education, he has completed the M-Pharmacy and MBA. He has 13 plus retail, wholesale, international export knowledge in pharma sector. He is the owner of Mellon Medical and Distributor, Pune since 2013. He is the trainer for retail wholesale pharmacy business management and he is the host of one YouTube channel and channel name is Things by Amit.
Amit, and we have the family of 89,000 plus subscriber on YouTube, and it's our education channel that provide the various careers and business opportunities on a regular basis. To know the all updates regarding this, kindly subscribe our channel. So moving to the next slide. This is me, Business Development Executive of Global Pharma Academy. Myself, Saune Snehal. I have completed my Bachelor of Pharmacy, and here I resolve the general queries of the Global Pharma Academy students, assist them for the daily assignments, mock interviews, and project work. This is my contact number 9322341947, and this is my mail ID globalpharma516@gmail.com. If you have any query related to the courses we provided here, you can contact me on this number or through my mail. So moving to the next slide. Mission and vision. With the goal of educating every aspirant who want to work in the pharmaceutical sector, we offer education at most affordable price in India. Our goal is to reach the pharmaceutical training market on a global scale, and India should grow into a country known for innovation and quality. We want to be the first global platform where business executives may select the top personnel in the pharmaceutical sector to satisfy the most recent industry demands. So moving to the next slide. Benefits of our course. Our students are trained and nourished under excellent faculties having 15 plus years industrial experience as well as academic excellence. And here students are rigorously trained to meet the industry requirement. So moving to the next slide. Why us? So apart from the domain knowledge, we provide this like assignments and tasks, resume preparations, communication skills, presentation skills, mini projects, conduct mock interviews, personal development, provide job assistance, conduct examinations, and doubt clear sessions. So moving to the next slide. This is the syllabus of clinical data management that we covered during our certification course. Class first, clinical research and history. Class 2, clinical drug development. Class 3, ICH, GCP guidelines, IEC, IRB responsibilities. Class 4, 21 CFR Part 11 clinical trials. Class 5, clinical data management basic information. Class 6, clinical databases and types. Class 7, setup phase protocol, CRF design, edit, check, specification, document. Class 8, data management plan, user acceptance testing, SAE document, CRF completion guideline. Class 9, conduct data phase entry, conduct phase data entry, medical coding, data cleaning. Class 10, SAE recon, external data reconciliation, discrepancy management. Class 11, study closeout, and class 12, archival. So moving to the next slide. How to enroll? If you want to enroll, you have to pay online Google Pay or Phone Pay to 9423272876. After successful of payment, share payment screenshot with your name, email ID, location, qualification, WhatsApp number on WhatsApp to 9423272876, and after that you will get the seat confirmation email, and before one day all students will be added in class group on WhatsApp where all class links and recording shared. So moving to the next. Duration and mode. Duration for the course is 3 months. Mode online platform Zoho. Class date 14th May and class schedule only on weekends like Saturday and Sunday. So moving to the next. It's our various platform. We are on
YouTube, and channel name is Things by Amit. We are on LinkedIn, name is Global Pharma Academy. We are on Instagram, name is Global Pharma Academy, and this is our website globalpharmaacademy.com. And apart from this, we also have our own academy channel, and channel name is Global Pharma Academy. So you can also subscribe this channel for getting the more information of our courses. So these are the contacts number: CEO Amit Kumar Mane 9423272876, and this is my contact number 9322341947. If you have any query related to the courses we provided here, you can contact through this number. Thank you. Yes, if you have any query, you can ask. Hello. Yes, over to you, Amit sir. Yeah, thank you for presenting, and thanks our expert for guiding our student in this session. And thank you all of student for presenting and share your valuable time for this demo class. I hope all of your query mostly solved and you learn about our information certification course. So even if you have query, you can ask anytime. We have our groups on the demo class is open. You can ask them or directly connected with the Snail ma'am. And we open our admission till this Friday. Okay, so anyone want to enroll, you can enroll. The fees for this course is 5,999. So you can enroll by this. Again about any concern about your like career objective or any kind of the information you again needed, you like we are open like in the group. You can ask or call. So if you have query, you can ask. Otherwise, we will conclude the session. We'll wait for the 2 minutes more. Any message you want to give, ma'am, or student? You're saying me? Yeah, me to you. Oh, So any okay. message or like to our student, because most of the freshers are there. I want to do career in the clinical data management. So Yes. So I just suggest ki, you can enroll for this course. So, we explain in detail all the topics. So you are ready for interview. So we covered
all the details, means how to prepare for interview, how to prepare resume. We also covered the basic knowledge of Excel. So this is a very important into the day-to-day activity into the CDM. So also we prepare you for the interview. We have the set of interview questions, so and the answer as well. So you fully prepare for the interview, and you not have any fear and doubt in your mind before going through this particular interview. So yes, I just suggest to enroll into this session. So yes, and yes, thank you all, and thank you, Amit. Okay, thank you all of you for this your time and everyone. So wish you all the best for your career ahead. And this is just we start the session. So from Saturday we'll start with the resume preparation. So everyone who enrolled for this class, just share your. So we will share you one template. Okay, so and review the all how the resume should be. Okay, in the Saturday class, and then from the upcoming Saturdays we have live monitoring of this resume. Okay, then we'll do for the next HR question. Everything we will share in the group as well. Okay, so thank you for participating, and have a good day ahead. Okay, and that's it from my side. Thank you. Yes, we will conclude the session. Thank you all of you for joining. So you can leave now.